मैं समय हूं। Ramayana and Mahabharata are called itihasa. It means it happened like that. Did Ravana really have 10 heads? If he had 10 heads, how he would have slept? He could not turn this way, that side. श्री कृष्ण को समझना सबसे मुश्किल है। इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ भी कर सकते हैं। Jai Gurudev. Many people keep debating whether the events of Mahabharata and Ramayana, whether they actually happened or not. So why should we call it history and not mythology? Mythologies are called as Puranas. But whereas Ramayana and Mahabharata are called itihasa. Itihasa itself means thus happened. That means it's happened like this. Iti, like this, it happened. Now, there are dates, exact tithis that Rama and Krishna was born was all mentioned. The place is mentioned. And there are ample evidence that these were historical facts. Now, what makes you think that it is not historical or it could be a mythology? There are facts in Ramayana and Mahabharata which were later on added that will cause such a doubt whether this was a history or just a imagination of people. The original Mahabharata was called Jaya and it was only 25,000 verses. Today's Mahabharata has 1,25,000 verses. So, there is a lot of interpolations also. Same with Ramayana. Valmiki Ramayana is one thing, and then today you have about 1,000 Ramayans in all different languages. In Tamil there is a Kamba Ramayana, of course we all know Tulsi Ramayana, but it is a fact that these things happen. Otherwise, it can't make such a huge impact for centuries, not just on the Indian subcontinent, but as far as Indonesia and even Europe. Many cities in Europe starts with the word Ram. One close to Baden-Baden, that area, it's called Ramsburg. Berg is hill. So, all these possibilities are there only if something has really happened. And it has happened. There is one book by Dr. D.K. Hari, one of our research professors here. In the book, he has scientifically established Sri Ram and Sri Krishna were historical figures, not just mythological. Gurudev, I know that the magic in books like the Harry Potter series is imaginary, but Lord Ram, Lord Krishna and Hanuman perform such amazing tasks. How do they do all this? Oh, this is to be wondered. You need to wonder, how did it happen, right? If there is an explanation for wonder, it is no longer a wonder. Ramayana, Mahabharata is all to create that wow factor within you. Yeah? And if we try to explain the wow factor, we will mess it up, I tell you. So, simply wonder about it. Yeah. Gurudev, in school I have learned that the Wright brothers invented the first airplane, but in the Ramayana and Mahabharata, they were Vahana. They were, yes, they were planes. Pushpak Viman was there, right? In fact, there is this Shastra called Bharadwaja Vaimanik Shastra. It's an ancient scripture from 5,000 years ago, where Rishi Bharadwaj says how you can make a plane, and he made all the figures, pictures and the methodology called Bharadwaja Vaimanik Shastra, Bharadwaja's science of aeroplanes. Gurudev, did Ravana really have 10 heads?
If he had 10 heads, how he would have slept? He could not turn this way, that side. It would become very difficult for him to put his head and even turn. He would just lie down only in one direction. It is symbolic. ये कहते हैं कि इसका तो कान सब जगह है, माने इसका तो फैलाव सब जगह है. अभी सर्वतोमुखी विकास, सर्वतोमुखी माने सब जगह चेहरा है क्या? ऐसा नहीं है. माने 10 दिशा में इसका कान था, 10 दिशा में ये देखते थे, 10 दिशाओं में इनकी कीर्ति थी. ऐसे योग्य व्यक्ति थे. ये बताने के लिए दशानन. Gurudev, Yudhishthira's very strict adherence to his dharma gave him a clear conscience, but it caused so much loss and anguish and despair to people around him. Same with Rama. So how does one know that following my dharma is right, especially when it causes so much trouble and anguish to people around me? Someone walking on the path of dharma faces a lot of challenges. It brings out the best in them and it shows the character, the commitment and the zeal and enthusiasm and the power. If everything is smooth, power of that person can never be experienced. How would anyone know the commitment of Yudhishthir if he is not put through lot of tests? सोने पर जितना हथौड़ा लगता उतना वो चमकता है, चमक कम नहीं होता फिर उसमें. गुरुदेव, लक्ष्मण रेखा क्या थी और वो कैसे काम करती थी? माने इसको पार करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे. उसी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं. सहनशीलता का एक सीमा आ जाती है ना, तब कहते हैं हमारी लक्ष्मण रेखा है. मान लो सीता उसको पार नहीं करती तो ये मुसीबत ही नहीं हो सकती थी और रावण इनको पकड़ नहीं सकता था. तो लक्ष्मण रेखा उसी कहते हैं जिसको पार करने से तुम मुसीबत को न्योता दे रहे हो. Gurudev, the entire Mahabharata was fought on the context of being a Dharma yudha, and it is said that one man's revolutionary is another man's terrorist. So what is exactly the definition of Dharma and what is the difference between a Dharma yudha and Jihad, for example? देखिए, धर्म युद्ध यही है, अपने मांग के लिए नहीं किया, अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं किया, जन हित के लिए, कल्याण के लिए किया जाता है. सबको नज़र रखते हुए वो करना ही पड़ता है तो उसको धर्म युद्ध कहते हैं. जिहाद जब शुरू हुआ था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही था कि अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे, मगर इसको ये ना समझना दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ेंगे, ये गड़बड़ हो गया. जो हमारी बात नहीं मानते हैं या जो हमारा धर्म का अनुकरण नहीं करते हैं उनको ख़त्म करो, ये गलत इंटरप्रिटेशन. दूसरे धर्मियों को मारना धर्म युद्ध नहीं कहा जाता. जो गलत करता है औरों के साथ अत्याचार करता है उनको शिक्षा देना, ये धर्म युद्ध. सजा और सीख का एक ही शब्द है संस्कृत में, शिक्षा. माने किसी को सजा दे रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि करुणावश उनको सही करने के लिए वहाँ भेज रहे हैं. जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं उनको अस्पताल भेजते हैं. ऐसे किसी का कर्म माने उसका चलन वलन में, उसके कर्म में दोष आ जाता है तो उनको कारागृह भेजते हैं. वहाँ बैठो भैया, ध्यान करो, फिर तुम ठीक हो जाओगे, फिर वापस आ जाओ. ये जज भी करुणा के बिना जज नहीं हो सकता है ना. ये न्यायाधीश होते हैं, वो क्रोध में, आक्रोश में, राग और द्वेष में कोई निर्णय नहीं दे सकता. देगा तो वो न्यायाधीश नहीं है. गुरुदेव, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान जी, इन्हें सब चिरंजीवी कहते हैं. तो ये चिरंजीवी क्या है और क्या ये सब अभी यही हैं, यहीं कहीं? वैसे चेतना चिरंजीवी तो होती है. उनमें से ये जो 7 महान व्यक्ति है, इनकी चेतना हमेशा चिरस्फूर्तिदायक रहे, हमेशा स्फूर्ति देती है लोगों को. हमेशा ये स्मरण मात्र से वो सारे गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगते. इसलिए इनको गिना गया है 7 चिरंजीवी. और मुख्य तौर से ये 7 गुण ही जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण गुण माना जाता है. बाकी सब इन्हीं में से आ जाते हैं.
Gurudev, Ekalavya worshipped Drona, but why did Drona not accept Ekalavya as a student? That is my question too. I am not a lawyer for Dronacharya at all. But one thing, if you see from a bigger picture, what did Dronacharya do? He made Ekalavya an example. Though Dronacharya got bad name, but he elevated the status of a disciple. So in fact, he made Ekalavya as an icon of guru-disciple relationship. अंगूठा मांगा मगर उन्होंने ऐसे आसमान तक की कीर्ति उनको पहुंचा दी। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों को अवतार कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि राम जी की 12 कलाएं संपूर्ण खिली हुई अवस्था में थी जब वो शरीर में पधारे, और भगवान श्री कृष्ण की 16 की 16 कलाएं पूरी तरह ब्लॉसम थी जब वो शरीर में आए। तो अवतारों का इन कलाओं के साथ कोई संबंध गुरुदेव? हाँ हाँ बिल्कुल। कला मैंने अभी देखिए चंद्रमा जबकि पूरा है, मगर अष्टमी का चंद्रमा और 14 का चंद्रमा में बहुत फर्क है। 14 के चंद्रमा और पौर्णिमा के चंद्रमा में भी फर्क है। क्यों? उसी को कला कहते हैं। तो जैसे परशुराम 9 कला के हो गए तो श्री राम जी 12 कला के हुए और हनुमान जी को 14 कला के बोलते। इस तरह से चेतना का हर रंग जब पूर्ण रूप से प्रकट होवे तो उसको 16 कला बोलते हैं। कलाओं को उनकी प्राकट्य के ऊपर बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। चांद तो हमेशा पूर्ण है ही, मगर वो दिखता कुछ कुछ अंशों में। वैसा देखा जो एक ही तो चंद्रमा है, वही चांद है, मगर वो दिखता है अष्टमी के आधा चंद्र, उसका अपना सौंदर्य है, और पौर्णिमा के चंद्रमा का उसका अलग सौंदर्य है। गुरुदेव प्रणाम। कृष्ण पांडव की साइड से, उनको मालूम था जहाँ मैं रहूँगा वहीं जीत है, फिर भी उनकी सेना उन्होंने कौरवों को दे दी। तो उस टाइम उनके राजधर्म की कोई अलग डेफिनेशन थी या कोई और वजह थी? उनको मालूम है मेरी सेना का ध्वंस होना तय है, फिर भी उन्होंने दे दी, वो वजह क्या हो सकती? कृष्ण सबकी मांग पूरा करते थे। एक मूवी के डायरेक्टर होते, वो विलन कुछ मांगे उनको भी उन्हें देना पड़ता है, और हीरो मांगे उनको भी देना पड़ता है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए सब एक थे, मित्र और शत्रु सब समान थे। वो कहानी है ना, श्री कृष्ण लेटे हुए थे, अर्जुन भी आ गया, अर्जुन पाँव के पास बैठा, और दुर्योधन आया उनसे मदद मांगने, वो सिर के पास बैठा। पहले दुर्योधन पहले आया था, मगर वो पाँव के पास बैठने गया, फिर उनको लगा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं इनके चरणों में क्यों बैठूं, ताकि उनके सिर पर बैठा, सिर के पास बैठा। और श्री कृष्ण तो नाटक कर रहे थे सोने की, श्री कृष्ण भी बड़े चालू थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी तो मैं संकट पे पड़ गया। को ये भी पता था उनकी खुद की सेना में भी बहुत झंझट हो गई थी, इतने घमंडू हो गए थे उनके अपनी सेना के लोग, जैसे कंपनी एनसीएलटी में चली जाती है ना इस तरह से उस वर्ज में थे कि इससे किसी तरह से छुटकारा पाऊँ, इससे निकलूं। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, अरे भगवान तो हमारे हैं, इतना मेरा भगवान है तो इतना गर्व तो होता ही है। फिर आदमी फिर सब भूल भाल के, नम्रता नहीं थी, कुछ नहीं था उनके सेना में। तो उस वक्त अर्जुन आया तो वो चरणों में बैठ गया, तो तुरंत उठ के पूछे अर्जुन से भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोला नहीं आप हो सर काफ़ी है हमें। तब श्री कृष्ण को कुछ देना ही पड़ा, उसको भी दूसरे को। तब उन्होंने कहा चलो अब हमारी सेना दे देंगे तेरे को। इस तरह से बड़े चालाकी से किया है वो तो और उनको भी मुक्ति मिली है। कृष्ण की सेना में तो मुक्ति मिली गई उन सबको। श्री कृष्ण का पूरा महाभारत में यही है, जहाँ गए वहाँ युद्ध पैदा किया और सबको मुक्ति दी। और एक जगह तो रणछोड़ राय गुजरात में जाके वो तो रण छोड़ के भागी भी आए। तो
श्री कृष्ण को समझना आंकना सबसे मुश्किल है, तो इसीलिए उनको कह दिया ये लीला है भगवान की। लीला माने खेल है, और खेल में इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ भी कर सकते हैं, और वो कोई भी चीज़ सीरियस नहीं, उनको ये सब खेल ही रहा। क्यों? कोई दूसरे तो थे ही नहीं, सब अपने ही स्वरूप में थे। जी गुरुदेव, वैसे तो आपने बताया अभी, फिर भी गुरुदेव जैसे भगवान का तो शांति के प्रति मन रहता है हमेशा, जैसे आप भी गुरुदेव इतने सारे देशों में शांति स्थापित की, तो कृष्ण भगवान ने तो बोला कर जाओ अर्जुन युद्ध करो, तो शांति के एकदम विरुद्ध था वो। भगवान कृष्ण ने 3 बार शांति संधान के लिए गए, मीडिएशन के लिए 3 बार संधान करने गए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, 3 बार शांति दूत बन के बोले 5 गांव दे दो, कुछ भी करो। जब वो किसी भी हालत में नहीं तैयार हो रहे थे, अधर्म बढ़ रहा था, तब उनको कहना पड़ा। उन्होंने कहा पूरी तरह से अपना कोशिश करेंगे शांति लाने की। जब हो नहीं पाया, तीसरी बार भी वो उनके बुद्धि में बात नहीं आ पाई, अपने ही विचार में, अपने बुद्धि में, कुबुद्धि में अड़े हुए थे, तब युद्ध करना ही पड़ा। अब गुंडे बदमाश बढ़ गए तो क्या कहोगे आप पुलिस को? अरे पुलिस तुम जाओ रक्षा करो जनता की। अब पुलिस को थोड़ी ना कहोगे कि अरे भाई तुम डंडा मत उठाओ, कुछ नहीं करो, चुप बैठो। अब दुश्मन आ गए गड़ी पर, तब हम आर्मी को थोड़ी ना ये कह सकते हैं तो बंदूक मत उठाओ, उनका हाथ मिलाओ। देश रक्षा के लिए योद्धा खड़े हैं ना गड़ी पे, तो ऐसी योद्धा के लिए भगवान कृष्ण ने कहा तुम अपना धर्म करो। तुम तो हो आर्मी मैन, तो आर्मी मैन का काम तुम करो, तो सन्यासी नहीं बन के भागना। ये उनको अपना धर्म के बारे में बताया। Gurudev, Krishna made Yudhishthira lie to defeat Dronacharya, and he also made Arjuna break the rules to defeat Karna. We understand that he did all this to uphold Dharma. So does this also allow us to break the rules if we are working towards betterment of the society? You ask businessmen. They sometimes circumvent the rules. Even politicians, they circumvent rules. The whole society runs with exceptions. For every rule there is an exception. But when it becomes too much, then the whole system collapses. जैसे बोला गया असत्य कितना होना चाहिए? भोजन में नमक एक मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, वो भोजन करने लायक नहीं होता। तो भोजन में स्वाद आने के लिए थोड़ा सा नमक हो, इसी को कहते लेशा अविद्या, थोड़ा सा अविद्या ठीक है। श्री कृष्ण ने यही बताया युक्ति, इसको कहते हैं युक्ति, अधर्म नहीं बोलते। धर्म के साथ यदि युक्ति ना हो और फिर युधिष्ठिर जैसे परेशान हुए वैसे होना पड़ता। मगर कृष्ण क्या थे? धर्म के पक्ष में थे, युक्तिपूर्ण। मगर एक बात है, यदि युधिष्ठिर जैसे होते हैं तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। कृष्ण उनके साथ थे जो 100% पूरा धर्म में थे। इसलिए 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट जीवन में, क्या? शक्ति, युक्ति, भक्ति और मुक्ति। मुक्ति माने फ्रीडम। जब तक तुम अपने आप को फ्री नहीं महसूस करोगे, प्रेम नहीं उमड़ेगा, भाव नहीं रहेगी। बंधा हुआ व्यक्ति इतना घुटन महसूस करेगा, उनमें ये नहीं रहेगा कि मैं अंदर से फ्री हूँ। अंदर से जब तक फ्री नहीं है तब तक सबको अपनाने की कला नहीं आती है, डरे डरे रहता व्यक्ति। सो संसार में सफल होने के लिए शक्ति और युक्ति, जीवन में सफल होने के लिए मुक्ति और भक्ति। भक्ति, ये 4 चीज़ें। Jai Gurudev Guruji. If you had to name one favorite character from Mahabharata, who would it be? Because there are so many characters. A guru doesn't have any favorite or non-favorite. For guru, everybody is same. Everybody has a place, everybody has a role to play, and so everyone is excellent. नाटक का तुम डायरेक्टर बनते हो, या if you are a director of a movie, if supporting characters are not there, then the main role will also fall.
Suppose there is a king role and then there is no supporting role for that. वो आजू बाजू में वो सब नहीं चलते हैं तो वो किंग कहाँ का किंग रहेगा? इसलिए हर एक रोल का अपना महत्व है, अहमियत है, और ये सब अपनी ही आत्मचेतना का ही विस्तार है। इसमें अब ये पूछेंगे तुमसे, भाई तुम्हारे उंगलियों में कौन सी तुम्हारी फेवरेट उंगली है? क्या बोलोगे? तुम्हारे हाथ में कौन सा फेवरेट हाथ है? दाहिने हाथ है, बाएं हाथ है? अरे दोनों हाथ जोड़ने से तो नमस्कार होता, नमस्कार करो यार भाई। Gurudev, Ravana and Kans, they are said to have got liberated. So how can someone who follows the path of Adharma get liberation? When you come out of a movie,